أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم کلاس 6 سبجیکٹ انگلش اور جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم چیپٹر نمبر 3 پیج نمبر 24 آف یور انگلش بک. اس کے آج تک ہم نے 4 لیکچر پڑھے ہیں اور آج ہم 5واں لیکچر اس کا پڑھنے جا رہے ہیں. لیکن 5واں لیکچر شروع کرنے سے پہلے جو ہم نے آج تک 4 لیکچر اس کے پڑھے ہیں ان کو ہم پہلے ریکیپچولیٹ کرتے ہیں. تو ریکیپچولیٹ ہم ایسے کرتے ہیں کہ جو محمد پیس بی اپان ہم وہ 571 AD میں مکہ سعودی عربیہ میں پیدا ہوئے ہیں اور اس وقت وہاں کے لوگوں کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ ہی دفن کرتے تھے. پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم جو ان کی مدر تھی اس کا نام تھا حضرت آمینہ اور جو ان کے ابا جان تھے یعنی فادر تھے اس کا نام تھا حضرت عبداللہ. جو اس کے گرینڈ فادر تھے اس کا نام تھا عبد المطلب اور جو اس کے دودھ پلانے والی ماں تھی اس کا نام تھا حلیمہ اور اس کے بڑے چاچا کا نام تھا ابو طالب اور ان کی عمر 4 سال کی تھی 6 ایئرز کی تھی 6 سال کی تھی جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. پھر ان کی عمر 8 سال کی تھی جب ان کے دادا کا انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو اس کے چاچا تھے ابو طالب اس نے اس کو اپنے پاس رکھا اور اس نے کو 12 سال کی عمر میں اپنے ساتھ سائرہ لیا ٹریڈ جرنی. وہاں پہ اس نے ایک پریسٹ کو دیکھا. اس پریسٹ نے بولا کہ ایک مونک نے دیکھا کرسچن مونک نے عیسائی پادری نے دیکھا. اس نے بولا کہ اس کو واپس لے جاؤ کیونکہ یہ پروفٹ محمد یہ لاسٹ پیغمبر ہے جو جیسے بائبل میں ذکر کیا گیا ہے اس کے حساب سے یہ لاسٹ پیغمبر. آج ہمیں اس سے آگے پڑھنا ہے 5واں لیکچر میں. تو پہلے ہم مورل ریڈنگ کریں گے پھر سمجھیں گے. All the children, why did he do so? Nani, he told Abu Talib that he has now was children. What happened after that? Nani, well, like his uncle Muhammad also adopted trade as his profession. He, peace be upon him, took the merchandise with other caravans to different places and every time earned a good profit. All the people appreciated his, peace be upon him, honesty, truthfulness, and straightforwardness. At that time, a rich widow, Khadija Rajallah anhu, who had heard a great deal about Muhammad's honesty, sent him with her merchandise to Syria. Her servant accompanied him. It was the second time that Muhammad, peace be upon him, was going to Syria. On their way, the caravan stopped near a church. A priest there started observing Muhammad, peace be upon him, very keenly. All the children, Nani, was he the same priest who had seen Muhammad, peace be upon him, for the first time with his uncle? Nani, no, I didn't think he was the same priest. He was somebody else. Anyway, people got suspicious and began to shout. The priest took shelter at the roof of the church and from there assured the people that he meant no harm, but was comparing the description of the lost prophet as given in the Bible with the features that he had found in Muhammad, peace be upon him. تو بچوں نے سوال کیا نانی سے کیا بولا اس کے بعد کیا ہوا؟ What happened after that? اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو محمد پیس بی اپان ہم ہے اس نے بھی اپنے چاچا کی طرح
तिजारत अपना पेशा बना लिया, तिजारत को अपना पेशा बना लिया, यानी वो भी अपना माल, अपना सौदा कारवानों के ज़रिए बहुत सारी जगहों, मुख्तलिफ जगहों पे बेचने लगा और उससे बहुत नफ़ा कमाने लगा। ऑल द पीपल, सारे लोग अप्रिशिएट, उसको अप्रिशिएट करने लगे, उसकी ईमानदारी, उसकी सच्चाई को, उसकी सादगी पे की कदरदानी करने लगे। अप्रिशिएट हो गया कदरदानी करना, और उसकी सादगी को अप्रिशिएट करने लगे, उसकी ईमानदारी को अप्रिशिएट करने लगे, उसकी ट्रूथफुलनेस यानी सच्चाई को अप्रिशिएट करने लगे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा की तरह क्या शुरू किया, उसने भी ट्रेड प्रोफेशन बना लिया, उसने भी ट्रेड को अपना प्रोफेशन बनाया, यानी पेशा बनाया, उसने भी ट्रेड को अपना प्रोफेशन बनाया। तो मगर वो अपने इस पेशे में बहुत ईमानदारी से और सच्चाई से और सादगी से काम करता था, तो लोग उसकी कदरदानी करने लगे। उस टाइम एक अमीर बेवा औरत खदीजा खातून, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उसने हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के ईमानदारी के बारे में बहुत कुछ सुना। तो उसने फैसला कर लिया कि हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को मैं अपने माल के साथ सायरा भेजूंगी। तो उसने उसके हमरा, उसके अपने मजदूर भी भेजे, यानी हज़रत मोहम्मद के हमरा उसने अपने मजदूर भी भेजे। जब उसने उसकी ईमानदारी, जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की ईमानदारी के बारे में सुना, तो उसने फैसला कर लिया कि मैं अपने माल को हज़रत मोहम्मद के हवाले करूंगी और उसको सायरा भेजूंगी और उसके हमरा अपने मजदूर भी भेजूंगी। जब ये सायरा जा रहे थे, उसके साथ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मजदूर भी थे। तो कारवान एक चर्च के पास रुक गया। कहाँ पे रुक गया? चर्च के पास, एक चर्च के पास रुक गया। ईसाइयों का चर्च, जिसको हम गिरजाघर बोलते हैं या ईसाइयों की इबादत गाह जो होती है, वहाँ पे रुक गया। वहाँ पे एक पादरी था, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का मुशाहिदा करने लगा, बहुत गौर से मुशाहिदा करने लगा। क्यों मुशाहिदा करने लगा? नानी ऑल द चिल्ड्रन, सब बच्चों ने अब सवाल किया, क्या ये वही प्रीस्ट था जो मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को पहले भी एक बार मिला था जब वो अबू तालिब के साथ सायरा गए थे? तो नानी ने बोला, नहीं, ये वो प्रीस्ट नहीं था, ये वो पादरी नहीं था, ये कोई और था। लोगों में शकूक पैदा हो गई, लोग मशकूक हो गए, प्रीस्ट इसको क्यों देख रहा है, तो लोग चलाने लगे। तो प्रीस्ट जो था, पादरी था, वो जल्दी कहाँ पे गया? चर्च के रूप पे, वो उधर पे चर्च के छत पे गया और लोगों को यकीन दहानी देने लगा कि जो मोहम्मद है, इससे आपको कोई खतरा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, आप डरो मत। मैं सिर्फ इसका मुकाबला कर रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ा है मोहम्मद लास्ट पैगम्बर के बारे में बाइबल में, और जो इसके फीचर्स है, खस्तखाल है, इसकी जो खस्तखाल है जो इसमें मोहम्मद में है, वो आपस में मिलते हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा बारीकी से देख रहा हूँ। तो एक बार फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये है कि जो मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उसने भी अपने चाचा की तरह क्या किया? उसने भी अपने चाचा की तरह ट्रेड को अपना प्रोफेशन बनाया, यानी पेशा बनाया। तो वो भी मुख्तलिफ जगहों पे अपना माल बेचने लगा और नफ़ा कमाने लगे। तो लोग, मगर वो अपने माल अपनी इस सौदागरी में, अपने इस बिजनेस में, ट्रेड में, वो बहुत ईमानदारी से और सच्चाई से और सादगी से काम करते थे। तो जो लोग हैं उसकी ईमानदारी को, उसकी सच्चाई को और उसकी सादगी को कदर करने लगे, कदरदानी करने लगे। तो उस वक़्त की एक बेवा खातून जिसका नाम था हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जब उसने हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की ईमानदारी के बारे में सुना, तो उसने फैसला कर लिया कि मैं अपने माल के साथ हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को भेज रही हूँ और उसके हमरा अपने मज़दूरों को भी साथ भेजूँगी। तो ये हज़रत मोहम्मद को दूसरा चक्कर था, सेकंड टाइम ही वाज गोइंग टू सायरा विद द कारवान ऑफ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो जो कारवान था वो कहाँ पे रुक गया? कारवान रुक गया चर्च के पास। चर्च हम ईसाइयों की जो इबादत गाह होती है, जैसे हमें मस्जिद शरीफ है, इसी तरह। तो वहाँ पे रुक गया। वहाँ पे जो उसका पादरी था
आलम दीन था उनका जो पादरी था, यानी वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी गौर से देखने लगा। और तो बच्चों ने सवाल किया, क्या ये वही पादरी था, क्या ये वही प्रीस्ट था जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले भी मिला था? तो नानी ने बोला, नहीं, ये वो पादरी नहीं था, ये कोई और था। तो जो वहाँ पे लोग थे उनको शकूक पैदा हो गई, उनको शक पैदा हो कि हमें कोई नुकसान ना हो, कोई हमें कोई तकलीफ ना हो। तो जो पादरी था वो जल्दी जल्दी चर्च के रूप पे चढ़ गया और लोगों को यकीन देने लगा कि आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जो हज़रत मोहम्मद है इसमें वो सब फीचर्स हैं जो बाइबल में मतलब बयान किए गए हैं। उनका तज़किरा करने लगा, उनको बयान करने लगा, उनको उनका जिक्र करने लगा। बोला कि जो लास्ट प्रॉफिट, हाँ, जो लास्ट प्रॉफिट आएगा, जो मैसेंजर आएगा लास्ट, जो पैगंबर आएगा लास्ट, तो जो उसके बारे में बाइबल में लिखा है वो सब मिलते हैं हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के साथ। तो बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह हम इससे आगे दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन जो इसमें टफ वर्ड आए हैं उनकी मीनिंग मैं आपको यहाँ पे लिखाऊंगा, दिखाऊंगा। तो आप क्या काम करोगे, आप जो ये टफ वर्ड की मीनिंग मैं यहाँ पे लिखाऊंगा, ये आप अपने एक्सरसाइज बुक पे नोट करके रखोगे। तो पहला वर्ड है हमें प्रोफेशन। प्रोफेशन किसको बोलते हैं? प्रोफेशन, प्रोफेशन हो गया पेशा, पेशा, पेशा। फिर है हमें प्रोफेशन अप्रिशिएट। अप्रिशिएट करना क्या हो गया? अप्रिशिएट करना हो गया कदरदानी करना, कदरदानी करना, या ऑनेस्टी। ऑनेस्टी हम ईमानदारी को बोलते हैं। उसके बाद ट्रूथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस हो गई सच्चाई, सच्चाई को बोलते हैं। उसके बाद हो गया स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस हो गया साफ दिली, सादगी, या सादगी भी लिखेंगे इसको, सादगी, सादगी, सीधा साधा। विडो, विडो हम बेवा औरत को बोलते हैं जिसका खामद ना हो, मर गया, बेवा, बेवा औरत। accompanied, sorry, accompanied, accompanied हो गया हमरा, हमरा किसी के साथ है, साथ जा, या साथ, हमरा के साथ। तो उसके बाद चर्च, चर्च हो गया गिरजाघर, एक जगह या ईसाइयों की इबादत है, या ईसाइयों की इबादत गाह। फिर उसके बाद हारम, हारम हो गया नुकसान। उसके बाद है और एक और अशर, हो गया यकीन देना, यकीन देना। उसके बाद एक कंपेयर, कंपेयर हो गया मुकाबला, मुकाबला करना। डिस्क्रिप्शन हो गया जिक्र करना, डिस्क्रिप्शन हो गया जिक्र करना या बयान करना, जिक्र करना, बयान करना।
تو انشاءاللہ اس سے آگے ہم دوسرے لیکچر میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. جو ہم نے آج تک پڑھا ہے اس کی آپ سائلنٹ ریڈنگ اور لاؤڈ ریڈنگ کرتے رہو گے تاکہ آپ کو ریڈنگ اسکل جو وہ ڈیولپ ہو جائے گا, اور اس کے پیج بھی لکھا کرو گے تاکہ آپ کو رائٹنگ اسکل جو ہے وہ بھی ڈیولپ ہوتا جا رہے گا. تو خدا حافظ. آج کے لیے اتنا کافی ہے.